what did we read? About the tense na. So today also we will continue the tense. First you have to give the answer of the previous classes. Just like there is the Tense of italicized. there is the tense of italicized word in each sentence. Word each sentence. Tense of the italicized. ITALICIZED. First one. Mother cooks food for us. Mother cooks What happened? ये really italicized का मतलब जो तीसरा ही लिखते हैं ऐसे. मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ. Note duster is here. अंडरलाइन कर लो इसको. Mother cooks food. No duster boy. Mother cooks food for us. For us. Here which one is the word? Cooks. Okay. Cooks is the word. So can you say in which tense is it? Future tense. अच्छा, how do you know that it is future tense? Past tense. How do you know that this is the past tense? Simple में कौन सा है? Simple present, simple past, simple future. Simple present tense. Why? Because the verb is in the first form. Present simple writing in present simple, present simple or simple present. You can write it in both way. मैं यहाँ पर अगर एक सेंटेंस लिखा रही हूँ तो try to write that sentences quickly. हाँ, मैं इसी को ही अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ. Slow. Will you want to write or go outside? बिना कॉपी के आप क्लास में कैसे बैठते हो? अनुग्रह, जब आपके पास कॉपी आ जाएगा ना तो फिर आप आ जाएगा. अभी जब गाओ कैसे फीवर हो गया आपको? Now the second sentence, mother cooked food for us. Mother cooked food for us. Here which one is the word? Cooked is the word. Cooked is कौन सा टेंस में है? सिंपल पास्ट. तो वर्ब जिस टेंस में होगा जो जिस फॉर्म में होगा वही टेंस बनते हैं. ठीक है. तो ये V2 है सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब वर्ब्स में सेकंड फॉर्म में होते हैं. तो ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट सिंपल लिख सकते हो और सिंपल पास्ट. बोथ वे कैन राइट. नेक्स्ट इज मदर will cook food for us. Mother जो आवाज आ रही है ना, मैं जब पूछूंगी तभी आपके आंसर आनी चाहिए. जब तक मैं नहीं पूछती हूँ वहां से कोई आंसर नहीं. इफ यू नो इट्स गुड बट डोंट गिव आंसर बिफोर आई आस्क. Dipali, when will you start to write? Mother will cook food for us. तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है? Will cook. Can you say in which tense it is? अथर्वी से. Mother will cook food. तो will किस में लगाते हैं? कौन से टेंस में लगता है? Present tense या future? अब बताओ फ्यूचर में ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि सिंपल है? सिंपल है. तो हाउ डू यू नो दैट इट इज फ्यूचर सिंपल? कैसे पता चला? वेरी गुड. क्योंकि सेल और व्हील है. सेल और व्हील है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. दैट्स व्हाई वी नो दैट इट इज ए
Simple. Next is the gardener. This question is for me. The gardener waters the plant. Here, which one is the verb? First tell me. The gardener है waters the plant. Gardener जो है वो verb है. What is its meaning? इसका meaning क्या होगा? हाँ, gardener पानी माली. पूरा सेंटेंस की मीनिंग क्या होगा? The gardener waters the plant. प्लांट्स को वाटर देता है. ठीक है. तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है? Which one is the verb? वाटर. ठीक है. वाटर इज इन which form? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? थर्ड में है. कैसे पता चला ये थर्ड में है? ये देखो कुक्स एस लगा है, इसमें भी एस लगा है. कुक्स वाटर्स है. तो कौन सा टेंस होगा? V1. तो which tense? लावण्या से which tense? Present simple. ये कौन सा टेंस है? Present simple. Understood? Next is the gardener watered the plant. In this sentence, which one is the verb? Arjun will say. This sentence में the gardener watered the plants. Here, which one is the verb? Watered. ये कौन से फॉर्म में है? कौन से टेंस होगा? which tense? पास्ट कंटिन्यूअस के पास सिंपल. पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल. पास्ट सिंपल. अगर कंटिन्यूअस में होता तो इसमें क्या लग जाता? ing. The gardener was watering the plants. ठीक है. The gardener will water the plants. The gardener will water the plant. Sapalda, this is for you. The gardener will water the plants. Which tense? ये कौन से टेंस में है? The gardener will water the plant. Future tense. कैसे पता चला? क्या दिखाया है? बाद में करेंगे ऐसा दिखा रहा है, इसलिए फ्यूचर टेंस हो गया. अगर शैल और will लगा है, if in a sentence shall or will is written, then it indicates the future tense. अब future tense में क्या होता है कि shall और will जो है वो helping verb होते हैं. क्या होता है? helping verb. In a sentence, two type of verbs can be there. One is called helping verb, another one is called main verb. आप देखो नंबर 1, 2, 4 and 5. How many words are there? How many words are there? 4 words. इसमें कितने वर्ड्स हैं? Cooks. Mother cooks food for us. कितने वर्ड है? Only one word. Mother cooked food for us. How many words? Only one word. ठीक है? But in number 3, mother will cook food for us. 2 words. Means in a sentence there may be one word
और देयर मे बी मोर देन वन वर्ब। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में इन अफर्मेटिव सेंटेंस, और सुना कौन अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होते हैं, सिर्फ एक वर्ब होते हैं। ठीक है, कितने वर्ब होते हैं? एक। और अगर एक ही वर्ब है मीन्स इट इज ए मेन वर्ब। बट इन अदर सेंटेंस इसी को छोड़कर एक्सेप्ट दिस टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़ दिए तो सारे में मोर देन वन वर्ब मिल गया सब टेंस। मैं जो बोल सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़ देंगे तो सारे में मोर देन वन वर्ब होते हैं। तो जो लास्ट वाला वर्ब होता है वो मेन वर्ब कहलाता है। लास्ट वाला क्या कहलाता है? मेन वर्ब। और स्टार्टिंग में अगर एक है तो एक हेल्पिंग वर्ब, दो है दो हेल्पिंग वर्ब, तीन है तीन, चार भी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। एकदम 2 3 4 है तो लास्ट वाला मेन वर्ब होगा, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसको अगर हम बनाते हैं मदर कुक्स फूड फॉर अस, एक ही वर्ब है। अब बिना हेल्पिंग वर्ब के आप इसको नेगेटिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कैन नॉट चेंज इट इनटू नेगेटिव। तो वी हैव टू राइट आवरसेल्व्स, वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब आवरसेल्व्स। जैसे मदर कुक्स फूड तो ये क्या हो जाएगा? मदर डज नॉट, क्या हो जाएगा? डज नॉट कुक फूड। फिर क्या हो जाएगा? कुक फूड। वैसे ये कुक्ड है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम ऐड करेंगे डिड नॉट। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस। अर्थात पचौरी, यू आर द स्पेशल वन। व्हाई यू आर नॉट राइटिंग? इतना स्लो क्यों सफलता? कोई पानी नहीं सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ, कोई मेरे पास नहीं आएगा टॉयलेट पे। Rewrite the sentence. Yes. Rewrite the sentence in simple part. In simple part. Simple part मतलब V2. It rains in July. First one. It rains in July. ठीक है, तो इसको ये कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नहीं जाना? अथार पचौरी लिखना है कि बाटा? हाँ, मेल लिख रहा है ना तुम्हारी कॉपी से। बहुत बढ़िया कर रहा है और तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। कॉपी किसकी है? तुम लिखो। तुम्हारा कॉपी कहाँ है? नहीं लाया, चुपचाप खड़े हो जाओ, बाहर निकल हो जाओ, जब बाहर तुम भी बाहर जाओ, जाओ खड़े रहना बाहर। It rains in July। ये दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं कि फोर्थ का है तो फिफ्थ में नहीं आएगा। ये कौन सी टेंस में है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चेंज इट इनटू सिंपल पास्ट। तो क्या करना है आपको? नो चेंजिंग एनी सब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट और एनी कॉम्प्लीमेंट। It's rained in July.
It rains in July. It rained in July. Next is farmers grow crops. Farmers grow crops. ठीक है? Farmers grow crops. Here you have to first find out that which one is the verb. तो verb कौन सा है? Grow. इसी का आपको V2 में चेंज करना है. What is the second form of grow? Grow, grew. इसको मैं कराई थी क्या बेटा था? हाँ मैं करवाया. ऐसे लग रहा है मुझे. हाँ मैं करवाए थे. चेंज करना करवाए थे. ठीक है. तो फार्मर्स ग्रो का क्या हो जाएगा? ग्रू क्रॉप्स. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर 3. दिस इज फॉर अथर. शी वेस्ट हर टाइम. शी वेस्ट सेकंड फॉर्म में. She wastes her time. Which one is the word here? Waste. Change it into V2. इसका V2 क्या हो जाएगा? Second form. कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? ED लग जाएगा. क्या लगेगा? ED. She wasted her time. ठीक है. Next is my friends help me. नंबर 4. दीपाली है क्या? अच्छा मैम लिखी गई. My friends help me. My friends help me. Which one is the word here? Help. इसको लवण्या change it into simple past. यस वेरी. कुछ नहीं करना है. हेल्प है उसको हेल्प भी करो. हेल्प मी. इजी है कि टफ है? सफलता इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? तो फिर आपके लिए बॉयज प्ले इन द पार्क. बॉय प्ले in the park. Change it into simple past. Very good. Boys played in the park. ठीक है? Understood? Simple present से simple past बनाने के लिए क्या करना है? verb का second form आपको लिखना है. और वहीं पर कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो वर्ब में. कहीं पर चेंज हुआ क्या? इट रेन्स इन जुलाई. इट एज इट इज है. इन जुलाई एज इट इज लिखा हुआ है. इट चेंज हुआ तो वर्ब. होगा तो उसमें ed लगा होगा. ed को हटा देना और s लिख देना. कहाँ पर? अगर सिंपल प्रेजेंट में करना है. हाँ सिंपल प्रेजेंट में करना है तो फिर वो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर इन नंबर है. सिंगुलर है तो उसमें यस लगेगा. यहाँ पर आई होगा तो वेस्ट हो जाता. यहाँ पर अगर आई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेस्ट. और शी है तो वेस्ट. इसको याद करना पड़ता है. याद करने के सिंपल तरीके. सिंगुलर है तो ईएस. प्लूरल है तो नो एस. ठीक है.
birds fly to their nest. To their nest. Very good. आंसर क्या हो जाएगा? Birds adjective का fly is the verb. पहले आपको verb को पहचान लेना कौन सा verb है कुणाल? ठीक है, तो birds will fly to their nest. क्या हो जाएगा? To their nest. सेकेंड इसके लिए होगा परिणीता के लिए. He gets late for school. He gets late for school. Which one is the verb? Gets. Very good. E के साथ क्या लगता है? Will. और S हटेगा कि रहेगा? हट जाएगा. जैसे ही हम will लगाते हैं तो S है वो हट जाएगा. He will get late for school. ठीक है. Next is they go home for lunch. For Kunal, they go home for lunch. Which one is the verb? Home. Now change it into simple future tense. ये दे रहेगा कि नहीं रहेगा? They go है. सिंपल फ्यूचर में क्या हो जाएगा? Yes, they go का हो जाएगा they will go home for lunch. समझ में आ रहा है? यहाँ पर था birds fly, जिसका सिंपल फ्यूचर क्या हो गया? Birds will fly. He gets late, वो लेट होता है. ठीक है, तो उसका फ्यूचर क्या हो गया? He will get late, वो लेट होगा. They go, वो जाते हैं, वे जाते हैं. इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा? They will go, वे जाएंगे. Next is for Arjun. I finish my work. ठीक है, I finish my work in time. Number 4. I finish my work in time. In time. इसको बोल के ना अर्जुन को बताओ. I finish तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस. क्या? I finish का yes. I shall. जनरली I के साथ में shall लगाते हैं according to old grammar, but now according to modern grammar, हाँ according to modern grammar आप will लगा सकते हो. ऐसे what is the best thing? What is the difference between shall and will? I shall finish my work in time. अच्छा, क्या डिफरेंस था? पहले ओल्ड ग्रामर अकॉर्डिंग टू ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ना, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है. और कैसे चेंज होता है उसके भी एक रीजन है. जब उसको कॉमन पीपल्स कंटिन्यूअसली अपने डेली रूटीन में यूज करने लगता है तो उसके जो रूल्स हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस आने लगते हैं. तो यहाँ पर यू ई बाकी जितने भी हैं ई शी इट ये सब के सामने वी लगता था अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर. ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आई के साथ अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर आई के साथ अगर वी लगा देंगे तो फ्यूचर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुन लोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेल और वी में डिफरेंस क्या है. सेल और वी का मतलब एक ही होता है, दोनों की मीनिंग सेम है. ठीक है, जैसे आई सेल गो मतलब मैं आऊँगा, ही विल गो मतलब वो आएगा. ठीक है, लेकिन ओल्ड ग्रामर में क्या होता है कि अगर सेल अगर लग गया
फ्यूचर अनसर्टेन होते हैं, जरूरी है क्या मैं आऊंगी तो तुम कल आ ही जाओगे, हो सकता है तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गया तुम नहीं आ सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आई विल लग गया तो ये निश्चित रूप में हो जाता है, सर्टेनिटी को शो करता है। किसको शो करता है? सर्टेनिटी, कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा या आऊंगी। यस, ठीक है। वैसे अगर ही शैल गो लग गया, ही शैल गो मतलब वो निश्चित रूप से आएगा। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर वी कैन राइट विल विथ आई। नेक्स्ट है she lives with her mother. She lives with her who will give answer? Shreyansh. जिसके मुंह से आवाज आ रही ना, if you want to go outside and do kneel down, then you can talk continuously. और चले जाना, बात करोगे तुम। श्रेयांश, she lives with her mother. चलिए, अच्छा इसमें वर्ड कौन से हैं? Which one is the word? Lives. Change it into simple future tense. She will live with her mother. She will live or she will live. She will live, sorry. क्या होगा? हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? This is the rule of the grammar. She will live with her mother. नहीं, तुम तो लिख ही रहे हो, दूसरे को डिस्टर्ब करो जबरदस्ती। नेक्स्ट इज द now we will read about the present continuous tense. Birds sing in the trees. Birds sing in the trees. इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 प्लस ing। कौन चेंज करेगा इसको? Birds sing in the tree. Birds प्लूरल के सिंगुलर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में कौन सा वर्ब आएगा? हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब। Birds are singing in the trees. आर, ठीक है, खुद से क्या लगाओगे? आर, अपने से। फिर सिंग का सिंग को क्या करना है? उसमें ing लगाना है। क्या लगाना है? ing। Birds are singing, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। इन द ट्री। इसको बनाते कैसे हैं? ध्यान से सुनो। ऑल ऑफ यू लुक एट ब्लैक बोर्ड। इसको बनाते कैसे हैं? इसमें पहले वर्ब देखना है। क्वेश्चन भी लिखोगे तभी आंसर लिख समझ जाएगा कि नहीं आएगा। पहले आपको वर्ड क्या होते हैं? वर्ब देखना है, ये वर्ब कौन से टेंस में है, वर्ब कौन सा है, फिर कौन सा टेंस में है, फिर कौन से टेंस में चेंज करना है। वर्ब कौन सा है, फिर उसको कौन से टेंस में चेंज करना है, उस टेंस का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस
प्रेजेंट है तो उसमें एम लगता है स्क्रीन पर, ठीक है। फिर देखना ये कौन सा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल है, हाँ प्लूरल के साथ आर लगता है, ठीक है। इतने चीजों को याद रखोगे तब जा करके आप टेंस में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस इज फॉर परिणीता। द प्यून रिंग्स द बेल, द प्यून रिंग्स द बेल। Which one is the word here? परिणीता, हाँ चलो लिख करो जल्दी से, लिख के बताओ। और अथर्व क्या लिख रहा है? जो नहीं लिख रहा है प्रिंसिपल से कॉपी जमा करो। अभी आ गया सबके पास। हाँ रिंग्स है, द प्यून रिंग्स द बेल। कहाँ पर मुझे तो नहीं दिख रहा है। बाकी तो सही है, बाकी एडिटिव रहेगा, इसमें थोड़ी कोई चेंज है। देखो बर्ड्स का बर्ड्स है, इन द ट्रीज का इन द ट्रीज है, नो चेंजेस। सिर्फ चेंज हुआ है तो इस वर्ड को हमने इस वर्ड में चेंज किया है, ठीक है। द प्यून रिंग्स को चेंज कर लो, यस क्या हो जाएगा? प्यून इज रिंगिंग, बाकी एडिटिव रहेगा द बेल। नेक्स्ट इज फॉर कुणाल। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। पहले इसमें देखो और कौन सा है कुणाल? Which one is the verb? Sun verb है, rises। आप इसको चेंज कर दो कंटिन्यूअस में, rises का क्या हो जाएगा? is rising, नहीं लगेगा, is rising in the east। इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? बहुत। नेक्स्ट इज फार्मर्स प्लो इन देयर फील्ड्स, फार्मर्स प्लो इन देयर which one is the verb here? प्लो, प्लो, प्लो का मतलब होता है हल चलाना, ठीक है। प्लो मतलब क्या होता है? हल चलाना, तो प्लो है। अब इसको चेंज करो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्लोइंग, प्लग नहीं है, फ्लोइंग। वेरी गुड, फार्मर्स आर फ्लोइंग इन देयर fields। The moon shines in the sky, the moon shines in the shines का क्या हो जाएगा? shining, ठीक है। The moon is shining in the sky। Now we will change the sentence into past continuous tense। मैम रुको, एक क्वेश्चन रुको ना।
इसका एडजेक्टिव वर्ब क्या होता है? was और were. With singular was is used, with plural were is used. मैम हमको कोई पूरा लिखना पड़ता है। तो लिखो ना। She told the truth. ये है अथर्व के लिए। She told the truth. She told the truth. Which one is the verb here? I'm told. She told the कौन सा वर्ब कौन सा है? कौन सा वर्ब? ट्रू। टोल्ड है। अब कौन सी फॉर्म में है? वन है कि टू? टू में। वेरी गुड। अब इसको चेंज करो पास्ट कंटिन्यूअस में। अथर पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो। शी टोल्ड द ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में चेंज करो। She told him the truth. शी वाज टेलिंग। शी वाज टेलिंग द ट्रूथ। इसका क्या हो जाता है? इसको आपको याद रखना पड़ता है। टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है? It rained yesterday. It rained yesterday. Who will change it into the past continuous? कौन चेंज करेगा? सुयांश। It rained yesterday. Rain का सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है रेन। बनाओ। It rained है, इसको करो सिंपल पास्ट टेंस। It was raining yesterday. Number 3. This is for Parinita. He went to the doctor.